Hello students, we had completed the unit 1 of the chapter the ashes that made trees bloom. We shall continue from unit 2 in this video. We shall see what happened to the weak neighbors and the old couple in this part. Not long after that, the good old man dreamed again. And the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. So उसके कुछ ही दिनों बाद फिर से उसको सपना आता है उस डॉग की आत्मा का, और वो बताता है कि कैसे वो विक्ड पीपल ने उसकी मील को जला डाला. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again. So वो सपने में बोलता है कि जो मील के जो आसेस हैं उसको जलाए गए हैं, उसकी जो राख है उसको आप सूखे पेड़ पर उसको स्प्रिंकल करो, उसको छींट लगाओ, जिसकी वजह से वो फिर से वहाँ पर फ्लावर्स आ जाएंगे. The old man awoke and went at once to his weak neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तो the old man उसी वक्त ही उठता है और जाता है, देखता है कि अपने पड़ोसी के घर में कि वो लोग बैठे हुए हैं अपने फायर प्लेस के पास और वो स्मोकिंग और स्पिनिंग कर रहे हैं. स्पिनिंग मतलब आग को हवा दे रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे. देखो ये फायर प्लेसेस होते हैं घर पर, कोल्ड कंट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद अ ब्लेज फ्रॉम some bits of the meal, while behind them lay a pile of the broken pieces. So वो कभी कभी अपने हाथ को अपने पैरों को सेक रहे थे, मील से जो आग निकल रही थी, और कुछ पीसेस वहाँ पर उनके पीछे भी पड़े थे, उस मील के टुकड़े. The good old man humbly asked for ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. So जो covetous मतलब जो greedy couple थे, उन्होंने बहुत ही गुस्सा हुआ उसके ऊपर अपना नाक उठाया, उसको घृणा कर रहे थे वो, फिर भी उन्होंने उसको आसेस दे दिए. उसके बास्केट भर के वो आसेस लेके आया. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. So घर के आने के बाद वो गार्डन में गया, देख रहा था कि उसका जो चेरी ट्री था वो खाली पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, क्योंकि विंटर सीजन था. He sprinkled a pinch of ashes on it. थोड़ा सा एक पिंच लेकर उस पर स्प्रिंकल किया उसने. स्प्रिंकल उसने छींट लगाई उस चेरी ट्री पर. It sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. So वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल आ गए और एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशबूदार हो गया. The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. तो ये खबर पूरे गांव में फैल गया और सारे वहाँ पर उस आश्चर्यचकित चीज़ को देखने के लिए दौड़ते हुए गए. The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make withered trees blossom. So the greedy couple जो थे, जो दुष्ट कपल थे, जो खराब कपल थे, वो इस स्टोरी को वो लोग भी सुने और वो भी जो बाकी आसेस रह गए थे उन्होंने उसको कलेक्ट किया, ट्रीज़ को फ्लावर से भर्ती करने के लिए. The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. So जो daimyo थे, जो जमींदार थे उस गांव के, वो उसी रास्ते से क्रॉस करने वाले थे. So जो अच्छे कपल, उसका जो डॉग का जो मालिक था वो आसेस को लेके गया अपने साथ. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. So जब उनकी जब गाड़ी आ रही थी, उनकी जो प्रोसेसन जब आ रही थी,
वो एक चेरी ट्री पर चढ़ गया और वहाँ पर उसको स्प्रिंकल किया। In the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. So, daimyos के दिन पर एक कस्टम था, एक प्रथा थी कि जब उनके स्वामी उनके घर के पास से होकर गुजरेंगे तो वो क्या करते थे, उनके विंडोज़ को बंद करते थे सम्मान में। They even pestered them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. So क्या करते थे, पेस्ट करते थे, पेपर भी चिपका देते थे, वो असम्मान ना हो उनको सम्मान देने के लिए। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. Prostrate मतलब lying on the ground face downward, नीचे बैठकर सर को नीचे करके वो लोग बैठते थे। ये कस्टम था उनका जब भी उनके जमींदार उनके गांव को क्रॉस कर रहे थे। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees! Get down on your knees!" And everyone kneeled down while the procession was passing. So, वो जो डायमियो थे उनका एक आदमी था जो कि बोल रहा था कि सबको नीज़ में बैठो, नील डाउन करके बैठने के लिए बोल रहा था जब वो प्रोसेसन आ रहा था। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. So जो कपल जो आदमी था वो चढ़ा हुआ था चेरी ट्री पर, उसने देख लिया। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. वो बोलने वाला ही था कि तुम भी नील डाउन करो, लेकिन उसने देखा कि वो बहुत ही ओल्ड फेलो है, सो उसने बिना नोटिस करके वहाँ से चला गया। सो व्हेन द daimyo's palanki drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over a tree. In a moment it burst into blossom. So daimyo का जब पालंकी देखो ऐसा होता है, पालंकी वो daimyo पालंकी में क्रॉस कर रहे थे, देखो क्रॉस कर रहे थे। सो उसी वक्त उसने क्या किया, चेरी ट्री में वो आसेस को उसने स्प्रिंकल कर दिया। सो उसी वक्त ही एक ही वक्त में वो सारे फ्लावर्स वहाँ पर हो गए। द डिलाइटेड daimyo ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर। सो daimyo ने ऑर्डर दिया कि तुम लोग रुको, मैं वो जो आश्चर्य काम हुआ है मैं उसको देखना चाहता हूँ। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. So वो खुशी से उन्होंने ऑर्डर किया कि उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाएं, सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैंस। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। सो खुशी से वो हैप्पीली वो घर पर पहुंचा और इस सारी बातों को अपने वाइफ से शेयर करने के लिए। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. जो ग्रीडी कपल थे, जो बुरे कपल थे, जो उसके जो विक्ट नाइबर थे, दुष्ट नाइबर थे, उन्होंने ये बात सुनी और वो भी कुछ आशीष लेके गया अपने साथ। There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed up a withered cherry tree. So वो भी उस ओल्ड कपल की तरह, ओल्ड मैन की तरह वो भी कॉपी करने लगा, वो भी आशीष लेके एक चेरी ट्री पर चढ़ गया जब daimyo का प्रोसेसन हो रहा था। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. So daimyo जब उस चेरी ट्री के डायरेक्टली अंडर उसके थे, उस चेरी ट्री के डायरेक्टली अंडर थे, तो उसी वक्त उसने आशीष को स्प्रिंकल किया, लेकिन कोई भी चेंज नहीं हुआ। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द daimyo एंड हिज वाइफ। लेकिन क्या हुआ, जो आशीष के जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जो धूल थी, वो सारे उनके नोजेस और आईज में घुस गए, उनके वाइफ के नाक में भी घुस गए।
सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, सो उसकी वजह से बहुत छींक आई, उनका नाक बंद हो गया. इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, सो जो जितनी डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जो प्रोसेसन हो रहा था वो सारा मिट्टी में मिल गया उसकी काम की वजह से. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज्ड द ओल्ड फूल बाय कॉलर, dragged him from the tree and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. So उनका जो बॉडीगार्ड था, जो आदमी सबको ऑर्डर दे रहा था बैठने के लिए, वो उसको कॉलर में पकड़कर वहाँ से खींचते हुए वहाँ से ले गया. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. तो उसको बहुत ज़ोरों से उसको पीट पीट के उसने मार डाला. डी से देखो, पीट पीट कर उसको ऐसे नाले में, ऐसे डीच में उसको, रोड साइड में जो डीच होते हैं उसको वहाँ पर उसने डाल दिया. देखो, thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. Healthy, active and prosperous. So जो अच्छे कपल थे, जो जिसका पेट डग मर गया था वो, उन्होंने हेल्दी और एक्टिव लाइफ जिया. लेकिन जो विक्ड कपल था वो जाके मर्ड में गिर के मर गया. विलियम एलियट क्रिप्स, ए जापानीज टेल. देखो यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी मैंने दिया है. सॉर्ड विनिंग, फ्यूरियस, इम्पर्टिनेंस. Okay, students, we shall see the question answers now. We shall see from unit 2. देखो page number 61. The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? The answer is, the old farmer was a kind person. He loved his dog as if it was his own baby. He fed it with peas with his own chopsticks and all the boiled rice it wanted. He was patient and kind to everything that had life, and often dug up a sword on purpose to give food to the birds. What did the dog do to lead the farmer to the hidden goal? The dog came running to the farmer, putting its paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. He thought it was only playing and did not mind it. However, the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the farmer followed it a few yards to a place where it began scratching the ground. The farmer thought that there was a bone or a bit of fish buried there and therefore struck his hoe in the earth. However, what he found was a pile of gold. ये क्वेश्चन था कि कैसे उसको गोल्ड मिला. सो डॉग उसको ले गया उस पेड़ के नीचे जहाँ पर सोने का ट्रेजर था. हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? ये आंसर्स हैं. 1 और 2 के आंसर हैं. मैं आपको PDF भेज दूँगी इसका. ये 2 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर है ये. क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है. Where is Anil? Where is Anil sitting? What is Anil doing? Where is Anil's friend sitting? Who is writing on the blackboard? What are some children doing? ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने के लिए दिया गया है. देखो यहाँ पर इसका आंसर है. When did you get this book? Why? Whose? How? ये आंसर्स हैं. आपको मैं PDF भेज दूँगी. आपको इसको कंप्लीट करना है. इम्पॉसिबल, इनकॉम्पिटेंट. देखो यहाँ पर जो IN लगा है वर्ड्स के स्टार्टिंग में, उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं.
देखो इसको, ये जो आई एम यूज़ हुआ है, आई एन यूज़ हुआ है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, FIX प्रीफिक्स, जिसको हम वर्ड के पहले, प्री मतलब पहले फिक्स करते हैं, जिससे कि एक नया वर्ड बनता है। पॉसिबल का अपोजिट होता है इम्पॉसिबल, कॉम्पिटेंट का अपोजिट होता है इनकॉम्पिटेंट, पेशेंट का इम्पेशेंट, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, सेंसिटिव का इनसेंसिटिव। इससे हम ऑपोजिट वर्ड्स बनाते हैं प्रीफिक्स ऐड करके। यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ भी दिया गया है, ए, एन, द का। ए और एन का यूज़ दिया गया है यहाँ पर आर्टिकल्स का। Okay students, this is all about your chapter, the ashes that made trees bloom, and this is the question answer. Please understand the video very clearly. If you are not able to understand once, please see it for again. And thanks for watching the video. Do the question answer in your copy. Thanks for watching the video. Bye.